हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा कि जर्जीस को देखा है। तो वाक़तन वो शख्सियत ऐसे ही मर्तबे की हामिल है जिनको हम दावत देने जा रहे हैं और जिनके आप मुंतज़िर हैं। मैं इल्तिमास करूँगा बड़े ही अदब और एहतराम के साथ साहबानुल हिंद हज़रत मौलाना मोहम्मद जर्जीस अंसारी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। उनकी आमद पर गुलकर कॉलोनी के लोगों का जो तासुर है, गुलकर कॉलोनी के बाशिंदों के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ी है, जिसकी तर्जुमानी बहरहाल अल्फाज में नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मैं मुस्तार ले रहा हूँ अहमद रिजवान साहब के दो अशार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. برادران اسلام، ابھی آپ نے ہمارے اساتذہ کرام سے بہت سی مفید باتیں سنی اور آپ جانتے ہیں کہ اساتذہ کی جب بھیڑ اسٹیج پر ہوتی ہے تو ایک طالب علم کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے طالب علم کو. بہرحال آپ کے ضد و اصرار پر میں نے جو ٹائم دیا، جرأت کر کے آیا ہوں. طالب علمی کا دور، دوسری طرف نوجوانی کا دور، ممکن ہے کہ کچھ لفظیں غلطیاں چوک ہو جائے. ہمارے اساتذہ ہماری رہنمائی کریں گے، بجائے اس کے تنقید کریں وہ ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے اور ہم سے ہونے والی لفظوں کی انشاءاللہ وہ اصلاح بھی فرمائیں گے. آپ کو تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے قرآن کریم والفرقان حمید کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک تو یہ تلاوت کی ہے جس کے اندر خاص طور سے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک تو یہ کہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرایا گیا کہ اے ایمان والوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. تقویٰ کیا چیز ہے، اس چیز پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا. اس کے بعد میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دوسرا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. یعنی جب بھی موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں پورا کا پورا اسلام کے دائرے کے اندر پائے اور تمہیں اسلام سے نکلا ہوا نہ پائے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں آپس میں کتنا اتفاق ہونا چاہیے، کتنا اتحاد ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کے واقعات کیا تھے، احترام مسلم کیا ہے، اس سلسلے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اور پھر تیسرا ٹکڑا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, टोली टोली न हो जाओ, टुकड़े टुकड़े न हो जाओ, यानी फिरक़े वाहियत का खात्मा। ये चंद चीजें मुझे आपके सामने रखना है। कब इसके कि मैं ये रखूं, ये बतला दूं कि इस्लामिक इंटरनेशनल मजहब है। और उसी सिलसिले में मैंने एक और आयत पढ़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिससे मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं और अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे से मांगा नहीं जा सकता, यानी कोई औलाद नहीं दे सकता और कोई जो है अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई लेने और देने वाला नहीं, ये तमाम अकायद जिस बारे में हमारे और आपके यहाँ हैं, उसी तरीके से ये अकीदा रखना कि पीर साहब दे सकते हैं या फला दे सकता है, ये शिर्क है। उसी तरीके से ये भी गलत है कि आदमी नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के बाद, यानी आपके खत्म नबुवत के बाद ये जानता है कि अल्लाह के नबी की नबुवत यानी आप खातिमुन नबीयीन हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसके बाद अगर वो किसी और का मोहताज है, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नबी भी मानता है और आपके होते हुए वो किसी के कौल का, किसी के फेल का अगर वो मोहताज है या उनको भी वो जरूरी समझता है, तो जहां वो शिर्क बिल्लाह करता है वो शिर्क बिरिसालत भी कर रहा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी किसी को वो शरीक ठहराता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ऐ रसूल हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारा नबी सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, दोनों जहान के लिए रहमत बनकर आए। ये उस मौके के अल्फाज आप उठाइए कि जब फरिश्तों ने कहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहें तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में रखकर कुचल दें, तो इमाम कायनात ने जवाब दिया था क्या है फरिश्तों, अगर आज ही ईमान नहीं लाएंगे तो कल इनकी होने वाली नस्लें ईमान लाएंगी। ये सुनो है फरिश्तों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो उसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और मेरी रहमत का तकाजा नहीं कि मैं इनके लिए बद्दुआ करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिब के अंदर पेशीन गोइयां की गई हैं। यह अलग बात है कि उनको सही तौर से समझाने वाला नहीं मिल सका, या उनके पंडितों ने, या ये कहिए कि उनके रहबरों ने और गाइड्स ने जो उंगलियां और हाथ रख लिया है उस जगह पर, उनको हटाने वाला कोई नहीं मिल सका। वरना आज ये इंसानियत जो टामटोलियां मार रही है, जो भटक रही है, उसको इतना भटकता हुआ आप नहीं देखते। मैं चंद श्लोक आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहाँ हमारे कुछ अजीज लोग भी बैठे हैं और कुछ हिंदी और संस्कृत ग्रामर से वाकिफ लोग भी बैठे होंगे। उनसे गुजारिश है कि जरा गौर से सुने और उसके बाद में टच भी कर सकते हैं अगर उनको हवाले में कुछ गलती महसूस हो। जरा अंदाजा लगाएं कि जो श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूं वो श्लोक वेद व्यास जी की के 18 पुराणों में से एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के 35 पुरों के तीसरे खंड के तीसरे अध्याय के श्लोक हैं। प्रेस नक्तेश्वर प्रेस बॉम्बे से छपने वाली प्रेस है। उस प्रेस से छपी हुई किताब के श्लोक में आपके सामने पढ़ रहा हूं। जरा उसका हवाला भी मैंने नोट किया है और नोट करके लाया हूं। जरा आप उन श्लोकों को सुन ले पहले। तथस्तु संभल गिराने शोभ स्वाजी जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता इत्थे कलुंग प्राय जनेषु धर्मणि धर्मत्तरावाय सर्वैनि भगवानो करिष्यति तच्छ्रुवा पुंडरीकाचो ब्रह्मग्रंथि शंभे विष्णुस्तु गृहे सोमति प्रादुर्भाव्यम्। और भी आगे चल सकते हैं, आप जरा देखते चलिए। चन्न सुना छोड़िया हैना प्रति मधुति विचन्न सुना छोड़िया हैना प्रति मधुति निर्पलिंग चिदोदसियोनि कोरिशोनि अनिश्यति अश्वमाशुमारु भादेव दत्ते जगतपति आसिना साधु मनवशदेश्वर वंदिता। और इससे भी खुलकर आगे चतुर्विधरात्रिदेव करिष्यामि क्लिच्छं भवन्तु बान्धवति वास्वशिना कृष्यता उवाच भूपति प्रेमरामाया नग्निशारदा तब देवो महाराज नंदा सप्तमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियादि तथा पश्चिम भो निर्पिति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मयमागिता। हवाला दे चुका। जरा श्लोकों का अर्थ समझने से पहले ये जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी लोग आए जिनको महापुरुष कहा गया,
या जिनको बिगेस्ट मैन कहा गया, दुनिया में जब उनका कदम रखा, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, और चाहे वो रामचंद्र जी की शक्ल में हो या श्री कृष्ण जी की शक्ल में, जितने भी लोग इस दुनिया में आए उनको इस दुनिया में किसी न किसी पढ़े लिखे की सोहबत मिली थी, या ये कहिए कि इनके माँ बाप जिंदा थे जिन्होंने इनको पढ़ाया और लिखाया। किसी के बाप जिंदा थे तो उसने अपने बेटे को पढ़ा लिया, तब जाकर इन्होंने एक इनकलाबी काम किया, या पढ़े लिखों की सोहबत में रहकर इल्म हासिल करके इन लोगों ने एक इनकलाबी काम किया। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर अगर इमाम कायनात, सरवरे कायनात, मोहसिन इंसानियत, मक्का और मदीना की गलियों के सरदार, आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का अगर आप मुताला करेंगे तो आपकी जिंदगी इन सब से बिल्कुल जुदा नजर आएगी। ईसा मसीह को सोहबत मिली थी, गौतम बुद्ध को सोहबत मिली थी, कृष्ण जी को सोहबत मिली थी, रामचंद्र जी को सोहबत मिली थी। इन्होंने पढ़ने और लिखने के बाद एक इनकलाबी काम किया। लेकिन नबी अकरम की जिंदगी पर अगर आप एक नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो उस वक्त आपके बाप का इंतकाल, नबी की उम्र जब 6 साल की हुई और माँ जब अपने शौहर की कब्र दिखलाने के लिए ले गई तो उस मौके पर माँ का भी इंतकाल हो गया। ये 6 साल का बच्चा बाप को भी खो बैठा, माँ भी इस दारे पानी से रुखसत हो गई। 8 साल की उम्र में दादा का भी इंतकाल हो गया। और गौर कीजिए 12 साल की उम्र में अपने चाचा अबू तालिब के साथ ये बच्चा मुल्क शाम की तरफ जा रहा है कि मैं भी चलूंगा। चाचा मना न कर सके। ये अलग बात है कि रास्ते में जहां पड़ाव डाला वहां एक बहरा राहिब निकल कर आया और कहने लगा क्या अबू तालिब आप अपने भतीजे को वापस कर दीजिए, क्योंकि अगर मुल्क शाम के यहूदियों ने इसको देखा तो कत्ल कर डालेंगे और मार डालेंगे, लिहाजा आप अपने इस भतीजे को ले जाओ क्योंकि आगे चलकर ये नबी बनने वाला है। कहा आपने कैसे पहचाना? जवाब दिया कि मैंने इसको महरे नबूवत से पहचाना, और फिर जब ये लड़का आ रहा था तो मैंने देखा कि तमाम दरख्त और पेड़ पौधे इसको सजदा कर रहे हैं, मैंने इससे पहचान लिया। अबू तालिब ने बहरहाल वापस कर दिया। 12 साल की उम्र में, जबकि आजकल के लड़कों का हाल ये होता है कि वो अपने बाप के पैंट की जेब से नोट चुराते हैं बालकनी हाल, फिल्म हाल में घुसने के लिए। लेकिन 12 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को चराया है, बकरियों भेड़ों को चराया, और आपने चराने के बाद जो आपने उजरत कमाई उसको अपने चाचा के सामने रख दिया। क्या चाचा ये मेरे पहले दिन की कमाई है। जरा गौर कीजिए कि जिंदगी थी 12 साल की उम्र में आपने ये काम किया, आपके बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, दादा भी नहीं, और इतना मुस्तकिल मिजाजी आपकी ये किसी और नबी के अंदर आप नहीं देखेंगे। बहादुरी इतनी ज्यादा है और मुजाहिदाना अपन इतना ज्यादा कि जब चाचा ने कहा था कि आए मेरे भतीजे मेरे ऊपर इतना बोझ न डाल के मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, तो कहा था क्या है चाचा जान, ये सूरज जो हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर और ये चांद जो 2,40,000 मील की ऊंचाई पर है, अगर इसको आप लाकर मेरे दाएं और बाएं हाथ पर भी लाकर रख देंगे तब भी मैं आपका भतीजा दीन हक की दावत से बात नहीं आएगा। जो चचा कदम कदम पे साथ देते हो, जरा मुस्तकिल मिजाजी देखिए और हिम्मत और बहादुरी तो देखिए कि पूरा इलाका दुश्मन, चाचा ने भी साथ छोड़ा, उस मौके पर भी आपका जवाब क्या था कि तन्हे तन्हा अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करके खड़े हो गए। ये जुर्रत, ये हिम्मत आप किसी और के अंदर नहीं देखेंगे। मुस्तकिल मिजाजी 1,24,00,000 अंबिया किराम आए हैं, या कमोबेश 1,44,000 अंबिया किराम आए, लेकिन उनके अंदर आप ये जज्बा नहीं देखेंगे कितना बहादुरापन और इतना दिलेरापन उनके अंदर भी आया हो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। जरा आप अंदाजा लगाएं। तो आपको किसी की सोहबत नहीं मिली, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, बल्कि आप इतने उम्मीद थे कि अपना नाम अनपढ़ थे कि आप अपना नाम मोहम्मद तक भी नहीं लिख पाते थे। और कुरान करीम ने आपकी उम्मी होने की गवाही इन अल्फाजों में दी है, वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और
की शान तो यह है कि उसने अनपढ़ों के अंदर से एक अनपढ़ रसूल भेजा, उन्हीं के अंदर उम्मी, जिस तरीके से माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, जिस तरीके से वो लिखना पढ़ना नहीं जानता, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत भी बिल्कुल ऐसी थी। बल्कि सुलह हुदैबिया का वो वाकया उठाइए कि कहा था कि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये शर्त मंजूर कर ली तो काफिरों ने कहा था कि मैं आपको रसूलुल्लाह कहाँ मानता हूँ, अगर रसूलुल्लाह मान लूं तो झगड़ा किस बात पर है, काटो। तो उस वक्त आप पूछ रहे थे कि ये रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है, जब इशारा किया गया तो आपने अपने हाथ से काटा था। गौर करो दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसा नबी मुझे मिला, ऐसा रसूल मुझे मिला जिसके बारे में नेपोलियन जैसा मुफक्किर ये कहने पर मजबूर होता है कि वाकई इस कुरान करीम को मोहम्मद जैसा एक अनपढ़ आदमी नहीं लिख सकता। अब्दुल्लाह इब्न मुकफ्फा जैसा एक आदमी ये कहने पर मजबूर हो गया कि मैं जब बिस्मिल्लाह की तरह कोई दूसरी आयत नहीं बना सका तो फिर मोहम्मद ने इस कुरान करीम को कैसे लिख लिया होगा, मैं नहीं जानता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। उसने एतराज किया था, इस बात पर इकरार किया था। उसी नबी की बशारत, अनपढ़ होने की बशारत, जन्नत के 8 दरवाजों की बशारत, जहन्नम के 7 दरवाजों की बशारत वेदों में बहुत स्पष्ट रूप से आपको मिलेगी। यह अलग बात है कि हम उसको नहीं समझ पाए। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है तो जरा सुनिए, बहुत सी चीजें छुपाई गई। यहां तक के मैं नहीं कहता, मनुस्मृति यहां तक कहती है, और आप ऋग्वेद की स्टडी करें तो यहां तक उसमें लिखा है कि अगर कोई हरिजन वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो। भला बताओ कि वो कौन कैसे तरक्की कर सकती है कि जिसका एक फर्द तो पढ़ता हो, दूसरे फर्द को पढ़ने से रोका जाता। लेकिन कुरान करीम की ये दावत नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहकर गए थे कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगरचे हदीस के अंदर थोड़ा सा जोर पाया जाता है, लेकिन इल्म की अहमियत के पेश नजर इस चीज को पेश किया जा सकता है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, जरा अंदाजा तो लगाएं क्या कहा गया, जरा पेशिन गोई देखिए। भागवत तथा कल्की पुराण के अनुसार मुताबिक तकरीबन 64,000 ऋषियों के आगमन का प्रमाण यानी सबूत मिलता है, जिनमें 24 महान एवं प्रसिद्ध ऋषि बताए गए, यानी 24 महान होंगे। और उसमें 24वें ऋषि को अंतिम ईश दूत कहा गया कि अंतिम होगा, और वो सबके अंत में आएगा, अर्थात उसके बाद में कोई भी अवतार अवतरित नहीं होगा, नहीं नाजिल होगा। फर्क इतना है, जरा अवतार शब्द आया है, जरा इस शब्द की हम व्याख्या कर रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों में अवतार का अर्थ क्या लिया जाता है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। यानी वो ये कहते हैं कि अल्लाह ही स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। वो ये कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है, जो कदापि सत्य नहीं, बिल्कुल गलत है। इसलिए कि अगर आप डिक्शनरी देखें, और डिक्शनरी का नाम नोट कर लें, नालंद विशाल शब्द सागर, डिक्शनरी में लिखा है कि अवतार का अर्थ होता है उतारा गया या उतारा हुआ, यानी पैसिव वॉइस है, मझोल है, उतारा हुआ या उतारा गया। और जाहिर बात है कि जो चीज उतारी गई होगी उसका उतारने वाला भी कोई होगा। भेजा गया, जब कोई आदमी भेजा गया तो उसका भेजने वाला भी कोई होगा। अवतार के माना भेजा हुआ यानी उतारा हुआ, तो उसका उतारने वाला भी कोई होगा। तो जब अवतार का अर्थ ये हुआ कि उतारा हुआ तो उसका उतारने वाला भी कोई होगा, फिर हम ये कैसे मान लें कि अल्लाह ही एक मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है? ये चीज बिल्कुल गलत है और सत्य हो ही नहीं सकती है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, अवतार का अर्थ ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही मनुष्यों में से किसी व्यक्ति को अपना दूत बनाकर संसार में भेजता है। और हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा ये दावत देने के लिए। उसने ये दावत दी अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबु तागूत, और तागूत से बचो। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा कि तागूत किसको कहते हैं, कुल्लु मा उबिदा मिन दुनिल्लाह, हर वो चीज जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए वो तागूत है। जिसकी भी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए उसको तागूत करार दिया गया है। तो जो भी अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करता है वो तागूत है। और सुनिए, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर डराने वाला भेजा। मेरे हिंदू भाइयों,
یہی تعلیم ویدوں کی ہے اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے. لیکن ہندو بھائیوں نے جب ویدوں کی شکشا کو، ویدوں کی تعلیم کو چھوڑ دیا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو انتم سنویدھان کی شکل میں، لاسٹ لا کی شکل میں، آخری قانون کی شکل میں نازل کر دیا ہے، تاکہ تمام ذاتی کے، تمام سموہ کے لوگ اس اسلام کی شیتل چھایا میں پرویش کر لیں. دیکھیے شری کرشن ارجن سے کیا کہتے ہیں، ذرا شریمد بھاگوت گیتا کا 4 ادھیائے اٹھائیں. یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارت. ہائے ارجن، جب جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے تب تب میں دھرم کو نافذ کرنے کے لیے، یعنی دھرم کو ترقی پہنچانے کے لیے اور ادھرم کا ناش کرنے کے لیے، گمراہیت کو مٹانے کے لیے جنم لیتا ہوں. شری کرشن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں انتم مہارشی ہوں. کیا کہا، جب جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تب تب میں آتا ہوں. اور میری شکشا کیا ہوتی ہے، ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن. There is no God, but God is only one without second. میری شکشا یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی برہمن کے سامنے جھکو، برہمن کے بنانے والے پرمیشور کے سامنے جھکو. وہی تمہیں سب کچھ دینے والا، وہی داتا ہے. رگ وید میں جگہ کہا گیا، اہم اندرمستی، اہم پشاستی، اہم وشنوستی، اہم برہماستی، اہم شیوستی، اہم پشاستی. میں اندر ہوں، میں وشنو ہوں، میں شیو ہوں، میں برہما ہوں، میں پشا ہوں، میں نیکیوں بھارتی کا خزانہ ہوں. یعنی میں ہی سب کچھ ہوں. ہمارے ہندو بھائیوں 3 خدا ہو گئے، برہما پیدا کرنے والا، وشنو پالنے والا اور شیو موت دینے والا. ان کی یہاں 3 سرشٹی ہوئی تو ان تینوں کو الگ کر دیا گیا کہ برہما کا کام ہے پیدا کرے گا، وشنو کا کام ہے پالے گا، شیو کا کام ہے موت دے گا. شیو کا دوسرا نام ہے مہادیو، مہادیو یہی کا نام ہے شنکر جی. غور کیجیے 3. اور جبکہ رگ وید کیا کہہ رہی ہے، اہم برہماستی، اہم وشنو استی، اہم شیو استی، اہم اندرستی، اہم پشاستی. میں ہی برہما ہوں، میں وشنو ہوں، میں شیو ہوں، میں ہی پشا ہوں، میں نیکیوں کا خزانہ ہوں، میں سب کچھ دینے والا ہوں. غور کرو مسلمانوں، ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہی مصور ہے، تمام اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں. وہی مہیمن ہے، وہی عزیز ہے، وہی جبار ہے، وہی متکبر ہے. یعنی یہ تمام اوصاف اسی کے ہیں. ایک اللہ وہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی باری، وہی مصور، وہی مہیمن، وہی عزیز، وہی جبار، وہی متکبر. غور تو کرو، اہم برہماستی، اہم وشنواستی، اہم شیواستی. میں ہی پیدا کرنے والا، میں ہی برہن بنانے والا، میں ہی مارنے والا، میں ہی جلانے والا، میں ہی سب کچھ دینے والا. یعنی بھارتی نیکوں کا خزانہ ہو. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. میرے ہندو بھائیوں، ویدوں کی شکشا کو چھوڑ دیا ہے ہندوؤں نے، اور ان تمہارے پنڈتوں نے تمہیں نہیں بتایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انتم مہارشی کی شکل میں پورا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس محمد کا اقرار تمہاری کتابوں میں نام کے ساتھ لیا گیا ہے. ایک اسمنترے مرے چاچاریہ سمنوتا مہامدتی خیاتا، مہامدتی خیاتا اگیان ہیتو موہمدھیکارم ناشم ودھایم ہی تدوڈیتے ویدا. نام تک لیا گیا ہے کتابوں کے اندر، حوالہ موجود ہے، بتا دیا میں نے. بھوشیہ پران نتیشور پریس پرتیشت پرو کا 3 کھنڈ 3 ادھیائے. ذرا غور کریں، بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں اور اس کی ہم تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ کہاں تک یہ باتیں صحیح ہیں. آخری نبی کے بارے میں دیکھیے کتنے اسپشٹ شکل میں وید ویاس جی نے لکھا ہے. تتھستو شمبھل گرامی سوت سواجی اجات منگلاچاریہ بہلا پاپتا وججتا. 2-3 چیزیں بتائی. شمبھل گرام میں آئے گا، اس کے آنے سے پورو بہت سی برائیاں ہو رہی ہوں گی، اور اس کے آنے کے بعد برائیوں کا پاپ تاپ کا نشٹ ہو کر نتیہ نوین منگلاچار نیکیوں کے کام ہوں گے. 3 چیز دیکھیے. اللہ کے نبی شمبھل گرام میں آئے تھے یا نہیں، اس کو ذرا سمجھنا. سنسکرت بھاشا ہے شمبھل، شم دھاتو، شم ورد، شم کریا، شم فعل ہے، اور شم کا ارتھ ہوتا ہے شانت کرنا. شمبھل ایڈجیکٹو ہے، صفت شانتی والا. اور گرام گاؤں، شہر. آپ بھی جب ایڈریس کبھی لکھتے ہو خط میں تو فلاں گرام میں پہنچے، گرام کے معنی گاؤں. شمبھل گرام
शांति वाला गांव, शांति वाला शहर, यानी अमन वाला गांव, अमन वाला शहर, जहां सुकून ही सुकून हो, अमन ही अमन हो, और जहां कोई जो है लड़ाई और दंगा ना हो, जहां बहुत ही ज्यादा सुकून। कुरान करीम में शांति वाला शहर बताया गया दारुस्सलाम। अल्लाह यहदी इला दारुस्सलाम, और अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई दारुस्सलाम की तरफ, सलामती वाले घर की तरफ कर रहा है। और दारुस्सलाम का हमारे असातिज़ा बैठे हैं, मालूम कर सकते हैं, दारुस्सलाम मक्का को कहा गया, यानी वही हिफाजत की जगह है, वही अमन की जगह है। और एक जगह कुरान करीम ने शांति वाला शहर ही लफ्ज उतार कर दे दिया, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, आप मालूम कीजिए। अल बलद के माना शहर, अल अमीन के माना अमन वाला शहर, और अल बलदिल अमीन से मुतालिक तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो मक्का है। यानी वो ऐ नबी मैंने कसम खाई तीन की, जैतून की, तूर की, सीना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और मैं कसम करता हूँ इस अमन वाले शहर मक्का की, यानी मक्का को अमन वाला शहर करार दिया। तथा शंभल गिरा में वो नबी शंभल गिराम में आएगा, यानी अल बलदिल अमीन में आएगा। साफ कह दो मक्का के अंदर आएगा, मक्का के अंदर आएगा, जिसको आपके तुलसीदास जी ने संग्राम पोथी किताब पर हाशिया चढ़ाते हुए अरब के नाम से याद किया। यहाँ पक्षी पात कुछ ना राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोती अल भरम गत सुनो घगराए। देश अरब भरग लता सहाय, अरब का मुल्क जोहरा सितारे की मानिंद चमक रहा होगा। सोती अल भरम गत सुनो घगराए, उसी में एक मौजिज़े दिखलाने वाला, अनहोनी बातों को प्रकट करने वाला, अनहोनी बातों को अब हम के सामने दिखलाने वाला एक आएगा। तो तथस्तु शंभल ग्राम का समझ के कहाँ आएगा? मक्का में आएगा। अब क्या होगा? सो तो सुआजी जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता भी बच्चिता, उसके आने से पहले बहुत सी बुराइयां हो रही होंगी। गौर करो मक्का की सरजमीन पर ही नहीं बल्कि पूरे अरब की सरजमीन पर कितनी बुराइयां हो रही थी। लोग पानी की जगह शराब को रखा करते थे, लोग पानी की जगह शराब को रखा करते थे, पिया करते थे, जुआ बुकेला करते थे, जिनाकारी उनकी यहाँ थी। यहाँ तक कि औरतें अपने घरों के दरवाजों पर झंडियां लगा लिया करती थी जो निशानी का काम दिया करती थी। इतनी बुराइयां सऊदी अरब की सरजमीन के अंदर थी। बाप के मरने के बाद बेटा अपनी माँ से निकाह कर लिया करता था, बेटी के मरने के बाद बाप यानी बेटी को पैदा हो गई, बाप अपने बेटी को दफन कर दिया करता था।